اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ خالد رضی اللہ عنہ مرج راحت کے قریب پہنچ رہے تھے اور انہیں میلہ نظر آ رہا تھا۔ بہت بڑا میلہ تھا۔ یہ غسانیوں کا کوئی تہوار تھا۔ ہزارہ لوگ جمع تھے، کھیل تماشے ہو رہے تھے، گھڑ دوڑ اور شتر دوڑ بھی ہو رہی تھی۔ کہیں ناچ تھا، کہیں گانے تھے۔ ایک وسیع میدان تھا جس میں آدمی ہی آدمی تھے۔ ان کی تعداد 20,000 کے لگ بھگ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر جب کچھ اور قریب گیا تو تہوار منانے والا یہ ہجوم دیکھتے ہی دیکھتے فوج کی صورت اختیار کر کے جنگی ترتیب میں آ گیا۔ گھڑ سوار باقاعدہ رسالہ بن گئے۔ ہر آدمی تلوار یا برچھی سے مسلح تھا۔ عورتیں اور بچے بھاگ کر قصبے میں چلے گئے اور ہجوم جو فوج کی صورت اختیار کر گیا تھا اسی طرح دائیں اور بائیں پھیلنے لگا جیسے مجاہدین کو گھیرے میں لینا چاہتا ہو۔ مجاہدین کو اپنے پیچھے سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کا قیامت خیز شور سنائی دیا۔ ادھر دیکھا، غسانی سواروں کا ایک دستہ تلواریں اور برچھیاں تانے سمندر کی طوفانی لہروں کی طرح چلا رہا تھا۔ یہ تھا وہ جال جو جبلہ بن الاحم نے خالد رضی اللہ عنہ کے لیے بچھایا تھا۔ ممکن نظر نہیں آتا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو اس جال سے نکال سکیں گے۔ مجاہدین کی تعداد 9,000 بھی نہیں رہ گئی تھی اور جس دشمن نے انہیں اپنے جال میں لیا تھا اس کی تعداد 3 گنا تھی۔ مجاہدین تھکے ہوئے بھی تھے۔ 5 روزہ صحرائی سفر کے بعد وہ مسلسل پیش قدمی اور مارکا آرائی کرتے آ رہے تھے۔ غسانیوں کے بادشاہ جبلہ نے ٹھیک سوچا تھا کہ مسلمان کوچ کی ترتیب میں آ رہے ہوں گے اور انہیں جنگی ترتیب میں آتے کچھ وقت لگے گا اور ان پر حملہ اس طرح ہوگا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے مسلمانوں کی قلیل تعداد کو بھی پیش نظر رکھا تھا اور یہ کہ مسلمان میلے کو بے ضرر لوگوں کا میلہ ہی سمجھیں گے۔ غسانیوں کو معلوم نہیں تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ میلے پر نہیں آئے تھے۔ وہ تجربہ کار سالار تھے۔ انہیں اچانک حملوں کا تجربہ ہو چکا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ جوں وہ دشمن ملک کے اندر ہی اندر جا رہے ہیں، حملوں اور چھاپوں کا خطرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ چنانچہ وہ لشکر کو ایسی ترتیب میں رکھتے تھے کہ اچانک اور غیر متوقع حملے کا فوراً مقابلہ کیا جائے۔ ان کے عقب سے غسانیوں کے جو سوار طوفانی موجوں کی طرح آ رہے تھے وہی مسلمانوں کو کچلنے کے لیے کافی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی توجہ اس رسالے پر تھی اور وہ مطمئن تھے۔ مجاہدین ایک مشین کی طرح اس صورتحال سے نمٹنے کی ترتیب میں آ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خود نعرہ تکبیر بلند کیا جس کا مجاہدین نے رعد کی کڑک کی طرح جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بلند آواز سے کچھ احکام دیے۔ خدا کی قسم، ہم انہیں سنبھال لیں گے، اللہ کے نام پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ غسانیوں کا رسالہ بڑی تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے اور کچھ دائیں سے ایک اور رسالہ نکلا۔ سینکڑوں گھوڑے انتہائی رفتار سے دوڑے آ رہے تھے۔ ان کا رخ غسانی سواروں کی طرف تھا۔ کسی غسانی نے چلا کر کہا، پیچھے دیکھو، یہ مسلمان سوار معلوم ہوتے ہیں۔ پیچھے سے آنے والے سوار مسلمان ہی تھے۔ یہ لشکر کا عقبی حصہ یعنی ریئر گارڈ تھا۔ ان سواروں نے غسانی سواروں کو آن لیا۔ غسانی سوار اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا حلہ بے ترتیب ہوتے ہوتے رک گیا۔ ادھر سے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سوار دستے کو تیز حملے کا حکم دے دیا۔ غسانی سوار گھیرے میں آ کر سکڑنے لگے۔ پھر وہ اتنے سکڑ گئے کہ ان کے گھوڑوں کو ایک قدم بھی دائیں اور بائیں اور آگے پیچھے ہلنے کی جگہ نہ ملتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ نے شتر سوار تیر اندازوں کو میلے والے لشکر پر تیر برسانے کا حکم دے دیا اور دوسرے دستوں کو دشمن کے پہلوؤں پر حملے کے لیے بھیج دیا۔ انہوں نے اپنے دستے کے سامنے سے حملہ کیا۔ یہ عقل اور جذبے کی لڑائی تھی۔ غسانی پیادوں کو اپنے گھڑ سواروں پر بھروسہ تھا جو اب مجاہدین کی تلواروں سے کٹ رہے تھے یا مارکے سے نکل کر بھاگ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کے لشکر کے عقب میں چلے جائیں تاکہ دشمن شہر میں نہ جا سکے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے غسانیوں کے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ یہ خیمے میلے کے لیے لگے ہوئے تھے۔ شعلوں نے غسانیوں پر خوف طاری کر دیا۔ ان کے حوصلے تو یہی دیکھ کر ٹوٹ گئے تھے کہ انہوں نے جو جال بچھایا تھا وہ بری طرح ناکام ہو گیا تھا۔ غسانیوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ ان کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہو رہا تھا کہ خون دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور آخر وہ بھاگنے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ بار بار اعلان کر رہے تھے کہ اپنے شہر کو تباہی سے بچانا چاہتے ہو تو باہر رہو۔ شام تک خالد رضی اللہ عنہ اس شہر سے مال غنیمت اور بہت سے قیدی اکٹھے کر چکے تھے۔ شہر میں ان عورتوں کے بین سنائی دے رہے تھے جن کے خاوند، باپ، بھائی
भाई और बेटे मारे गए थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने रात को अबू उबैदा के नाम एक पैगाम भेजा कि वो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को बसरा के कुर्बो जवार में मिले। बसरा गुस्सानी हुकूमत का पाया तख्त था। गुस्सानी और रूमी मिलकर बसरा के दिफा का इंतजाम कर रहे थे। मुजाहिदीन का बड़ा ही सख्त इम्तिहान अभी बाकी था। वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का भेजा हुआ रसूल नहीं मानते थे और अल्लाह को वहदहू ला शरीक नहीं समझते थे, वो अभी तक जंगी ताकत को अफराद की कमी बेशी से और हथियारों की बर्तरी और कमतरी से नाप तोल रहे थे। हैरान तो वो होते थे कि मुसलमान किस तरह और किस ताकत के बलबूते पर फतह हासिल करते आ रहे हैं, लेकिन अपनी फौजों और घोड़ों की इफरात और अपने हथियारों की बर्तरी का उनको ऐसा घमंड था कि वो सोचते ही नहीं थे कि इंसान में कोई और ताकत भी हो सकती है, और ये ताकत अकीदे और मजहब की सच्चाई होती है। गुस्सानियों का बादशाह जबला बिन अल अहम बसरा में इस खबर का इंतजार बड़ी बेताबी से कर रहा था कि मर्ज राहित में उसका धोखा कामयाब रहा और मुसलमानों को काट दिया गया। उसने फर्ज कर लिया था कि मुसलमानों को शिकस्त दी जा चुकी है। उसे आखिरी इत्तला ये मिली थी कि मुसलमानों के लिए मेले की सूरत में फंदा तैयार हो चुका है और मुसलमान तेजी से उस फंदे में आ रहे हैं। जबला के तौर और अंदाज ही बदल गए थे। गुज़श्ता रात उसने अपने यहाँ जश्न का समा बना दिया था। शराब के मटके खाली हो गए थे। जबला बिन अल अहम शराब में तैरता और नशे में उड़ता जवान हो गया था। उसने बुढ़ापे का मजाक उड़ाया था। उसने ये भी न देखा था कि उसके हरम की जवान औरतें मनमानी कर रही हैं और उनमें से बाज उसकी कैदोबंद से आजाद होकर अपनी पसंद के आदमियों के साथ महल के बागीचों में गायब हो गई हैं। खुद जबला की बदमस्ती का ये आलम था कि उस जश्न में नौशी में एक बड़ी हसीन और नौजवान लड़की उसके सामने से गुजरी तो उसने लपक कर लड़की को पकड़ लिया और उसे अपने बाजुओं में जकड़ कर बेहुदा हरकतें करने लगा। लड़की उसके बाजुओं से आजाद होकर तड़पने लगी। उसने लड़की को अलग करके एक झटके से अपने सामने खड़ा कर लिया और बड़े गुस्से के साथ बोला, तेरी ये जुर्रत, कौन है तू जो मेरे जिस्म को नापसंद कर रही है? लड़की ने रोते हुए चिल्लाकर कहा, तेरी भांजी, तेरे बाप की बेटी। जबला बिन अल अहम ने बड़ी जोर से कहा लगाया। बोला, फतह की खुशी का नशा शराब के नशे से तेज होता है। उसकी आवाज लड़खड़ा गई थी। बोला, कल जब मुझे खबर मिलेगी कि मुसलमानों को कुचल दिया गया है और उनमें से कोई भी भाग नहीं सका तो मेरी हालत और ज्यादा बुरी हो जाएगी। उसकी भांजी रोती हुई जश्न से निकल गई। फिर वो वक्त आ गया जब वो मुसलमानों पर अपनी फतह की खबर का मुंतजिर था। अब तक खबर आ जानी चाहिए थी। वो बाग में जा बैठा। एक जमा साल खादिमा तश्तरी में शराब की सुराही और प्याला रखे उसकी तरफ जा रही थी। उधर से दरबान बड़ा तेज चलता उस तक पहुंचा। जबला ने बेताब होकर दरबान से पूछा, आया है कोई मर्जल राहित से आया है? दरबान ने दबे दबे से लहजे में कहा, कासिद आया है, जख्मी है। जबला ने जोश से उठते हुए कहा, भेजो उसे, वो फतह की खबर लाया है, उसे जल्दी मेरे पास भेजो। खादिमा तश्तरी उठाए उसके करीब खड़ी थी। उधर से एक जख्मी चला आ रहा था। जबला बिन अल अहम ने कहा, वहीं से कहो कि तुम फतह की खबर लाए हो। जख्मी कासिद ने कुछ न कहा। वो चलता आया। उसके कपड़े अपने जख्मों के खून से लाल थे। उसका सर कपड़े में लिपटा हुआ था। जबला ने बुलंद आवाज से पूछा, क्या तुम इतने जख्मी हो कि बोल नहीं सकते? कासिद ने कहा, बोल सकता हूँ, लेकिन जो खबर लाया हूँ वो अपनी जबान से सुनाने की जुर्रत नहीं। जबला की आवाज दब सी गई, क्या कह रहे हो? क्या मुसलमान फंदे में नहीं आए, आकर निकल गए हैं? कासिद ने शिकस्त खुर्दा आवाज में कहा, हाँ वो निकल गए हैं। उन्होंने ऐसी चाल चली कि हम उनके फंदे में आ गए। अपनी फौज कट गई है। मर्ज राहित को उन्होंने लूट लिया है। जबला बिन अल अहम ने तश्तरी से शराब की सुराही उठाई। खादिमा ने प्याला उठाकर उसके आगे किया। जबला ने सुराही बड़ी जोर से कासिद पर फेंकी। कासिद बहुत करीब खड़ा था। सुराही उसके माथे पर लगी, वो तेवरा कर गिर गया। जबला ने खादिमा के हाथ से प्याला छीनकर उसके मुंह पर मारा और लंबे लंबे डग भरता वहां से चला गया। गुस्सानियों के बादशाह का महल मातमी फजा में डूब गया। मर्ज राहित के भगोड़े गुस्सानी बसरा में आ गए और बसरा मातमी शहर बन गया। असल मातम तो उनके यहाँ था जिनके भाई बेटे खामंद और बाप उस फंदे में आकर मर गए थे जो उन्होंने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के मुजाहिदीन के लिए तैयार किया था। उस मातम के साथ एक दहशत भी आई थी और ये दहशत हर घर में पहुंच गई थी। वो ये थी, उनके तीर जहर में बुझे हुए होते हैं। किसी को उस तीर से खराश भी आ जाए तो वो मर जाता है। कोई कहता उनके घोड़े परों वाले हैं, कहते हैं हवा से बातें करते हैं। कोई कहता उन मुसलमानों का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर था, उसका जादू चल रहा है, नाउजुबिल्लाह। कोई कहता उनके सामने लाखों की फौज भी नहीं ठहर सकती। सुना है दिल के बड़े नर्म हैं, जो उनके आगे हथियार डाल देते हैं उन्हें वो गले लगा लेते हैं।
जिस शहर में उनका मुकाबला होता है उस शहर की ईंट से ईंट बजा देते हैं, किसी को जिंदा नहीं छोड़ते, लड़ने वालों को पकड़ कर ले जाते हैं। दबी दबी ऐसी आवाजें भी सुनाई देती। मजहब उनका सच्चा मालूम होता है, वो अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं, यही उनकी ताकत है। जुनून से लड़ते हैं। उन लोगों पर जो हैरत और दहशत तारी हो गई थी उसमें वो हक बजानिब थे। जबला बिन अल अहम कहर भरे लहजे में अपने सालारों से कह रहा था, तुम लोग बसरा को भी नहीं बचा सकोगे। तुम्हारी बुजदिली को देखकर मैंने रूमियों को मदद के लिए पुकारा है। अगर तुम मुसलमानों को शिकस्त दे देते तो मैं रूमियों के सीने पर कूदता, उन पर मेरी धाक बैठ जाती, मगर तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। रूमी हमारे पाया तख्त की हिफाजत करने आए हैं। वो अपने सालारों को कोस ही रहा था कि उसे इत्तला मिली कि मुसलमानों की एक फौज बसरा की तरफ बढ़ रही है। उसने घबराए हुए लहजे में कहा, इतनी जल्दी? मर्ज राहिद से वो इतनी जल्दी बसरा तक किस तरह आ गए? रूमी सालार को इत्तला दो। रूमी फौज जो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की कामयाबियों की खबरें सुनकर जबला बिन अल अहम की मदद को आई थी, वो बसरा के बाहर खैमजन थी। उसके सालार को इत्तला मिली कि मुसलमानों की फौज आ रही है तो सालार ने फौज को तैयारी का हुक्म दे दिया। उस फौज में ईसाई अरब भी थे। फौज जो बसरा की तरफ बढ़ रही थी वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की नहीं थी। ये एक मुसलमान सालार शुराबील बिन हसना का लश्कर था जिसकी नफरी 4000 थी। मुसलमान लश्कर जो शाम की फतह के लिए भेजा गया था ये उसका हिस्सा था। खलीफतुल मुस्लिमीन के अहकाम के मुताबिक सालार अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने लश्कर के दूसरे हिस्सों को भी यकजा करके अपनी कमान में ले लिया था। बसरा पर शुराबील बिन हसना के हमले का पस मंजर ये था कि खलीफतुल मुस्लिमीन ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को एक खत लिखा था जिसमें कहा कि मैंने खालिद बिन वलीद को ये काम सौंपा है कि रूमियों पर चढ़ाई करे। तुम पर उसकी इताअत फर्ज है, कोई काम उसके हुक्म के खिलाफ न करना। मैंने उसे तुम्हारा अमीर मुकर्रर किया है। मुझे एहसास है कि दीन के बाकी मामलात में तुम खालिद से बरतर हो और तुम्हारा रुतबा ऊंचा है, लेकिन जंग की जो महारत खालिद को है वो तुम्हें नहीं। अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को उस लश्कर का सालार आला मुकर्रर किया गया। जिस वक्त खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को कुचलते जा रहे थे उस वक्त अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु फारिग थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब मर्ज राहिद के मकाम पर भी दुश्मन को शिकस्त दे दी तो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों को बुलाया। उस वक्त अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्ते दरियाए यरमूक के शुमाल मशरिक में एक मकाम हुरान में थे। उनके मातहत 2 सालार थे, एक शुराहबील बिन हसना और दूसरे यजीद बिन अबी सुफियान। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोनों सालारों से कहा, दोस्तों हम किस तरह शुक्र अदा करें अल्लाह तबारक व तआला का जो इब्न वलीद को रास्ते में आने वाले हर दुश्मन पर हावी करता आ रहा है। क्या तुमने नहीं सोचा कि हम इब्न वलीद के किसी काम नहीं आ रहे? वो जूं जूं आगे बढ़ता जा रहा है उसकी मुश्किलात खतरनाक होती जा रही हैं। उसका लश्कर थक कर बेहाल हो चुका होगा। आगे दमिश्क है, बसरा है, गुसानी है, ईसाई और रूमी है। क्या ये तीनों ये नहीं सोच रहे होंगे कि मुसलमानों को आगे आने दें और जब वो मुसलसल कूच और लड़ाइयों से शल हो जाएं और उनकी नफरी कम हो जाए तो उन्हें किसी मकाम पर घेर कर खत्म कर दें? सालार यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, रूमियों ने ऐसा जरूर सोचा होगा। रूमी लड़ने वाली कौम है और उसके सालार अक्ल वाले हैं। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पुरजोश लहजे में कहा, खुदा की कसम मैं रूमियों को ऐसा मौका नहीं दूंगा। क्या हम इतनी दूर से इब्न वलीद की कोई मदद नहीं कर सकते? बेशक कर सकते हैं। शुराबील रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तूने जो सोचा है वो हमें बता अबू उबैदा, अल्लाह उसका मददगार है। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इब्न वलीद के आगे दमिश्क और बसरा 2 ऐसे मकाम हैं जहां रूमियों और गुस्सानियों ने अपनी फौजें जमा कर रखी होंगी। इससे पहले के सालार आला इब्न वलीद बसरा पहुंचे हम बसरा पर हमला कर देते हैं। इससे ये होगा कि रूमी और गुस्सानी भी ताज़ा दम नहीं रहेंगे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने शुराबील रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, इब्न हसना मैं ये काम तुम्हें सौंपता हूँ, 4000 नफरी काफी होगी। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सालार शुराहबील बिन हसना को हिदायत दी और बसरा को रवाना कर दिया। उस वक्त खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मर्ज राहिद से फारिग हो चुके थे और उन्होंने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम ये पैगाम देकर कासिद रवाना कर दिया था कि अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दस्तों के साथ उन्हें बसरा के करीब कहीं मिले। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मर्ज राहिद के कस्बे के बाहर 2-4 रोज कयाम किया। शुराबील रज़ियल्लाहु अन्हु 4000 मुजाहिदीन के साथ बसरा पहुंच गए। रूमी बसरा के बाहर खैमाजन थे। वो समझे ये खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज है। उनके जासूसों ने उन्हें बताया कि उस फौज का सालार कोई और है। मौरिख लिखते हैं कि रूमी सालार ये समझे कि ये मुसलमानों की फौज का हिरावल है और पूरी फौज पीछे आ रही है। वो मान नहीं सकते थे कि इतनी फौज इतने बड़े लश्कर को मुहासरे में लेने आई हो।
रूमी फौज जिसकी तादाद 12,000 थी किले के अंदर चली गई। बसरा कलाबंद शहर था। शराबील रज़ी अल्लाह अन्हु ने किले के करीब मगरिब की तरफ कैंप किया और अपने लश्कर को कई दस्तों में तकसीम करके किले के हर तरफ मुतय्यन कर दिया। 2 दिन गुजर गए। रूमी और गुस्सानी किले की दीवारों के ऊपर से मुसलमानों को देखते रहे। शराबील रज़ी अल्लाह अन्हु ने किले के इर्द गिर्द कुछ न कुछ हरकत जारी रखी। दुश्मन किले से दूर दूर भी देखता था। उसे तवक्को थी कि मुसलमानों की पूरी फौज आ रही है। उसे अब अपने जासूसों के जरिए कोई खबर नहीं मिल सकती थी क्योंकि किला महासरे में था। सालार शुराहबील रज़ी अल्लाह अन्हु के मुताल्लिक ये बताना जरूरी है कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबी थे। जो सहाबा कराम वही लिखते थे उनमें शुराहबील बिन हसना खास तौर पर काबिल जिक्र है। इसी हवाले से उन्हें कातिब रसूल कहा जाता है। शुराहबील रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़ुहद व तक़वा तो मशहूर था ही, वो फन हर्ब ज़र्ब और मैदान जंग में क़यादत की महारत रखते थे और कहा करते थे कि उन्होंने ये फन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से यमामा की जंग में आतिश परस्तों के खिलाफ लड़ाइयों में सीखा। महासरा बसरा के वक्त उनकी उम्र 70 साल से कुछ ही कम थी। जज्बे और जोश खरोश के लिहाज से वो जवान थे और उनकी शहसवारी और तेगजनी जवानों जैसी ही थी। महासरे का तीसरा रोज था। रूमियों को यकीन हो गया कि मुसलमानों की नफरी उतनी ही है जिसने महासरा कर रखा है। अगर मजीद फौज ने आना होता तो अब तक आ चुकी होती। चुनाचे उन्होंने अपनी 12,000 नफरी की फौज बाहर निकाल ली। नफरी की इफरात के बल पर वो ऐसी दलेराना कार्रवाई कर सकते थे। मुसलमान कुल 4,000 थे। शराबील रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़ी तेजी से अपने दस्तों को इकट्ठा करके जंगी तरतीब में कर लिया। इस तरह दोनों फौजें आमने सामने आ गईं। शराबील रज़ी अल्लाह अन्हु ने आगे आकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ रूमियों, खुदा की कसम हम भागने के लिए नहीं आए। अपनी पहली शिकस्तों को याद करो। तुम हर मैदान में हमसे ज्यादा थे। खून खराबे से तुम बचते क्यों नहीं? हमारी शर्तें सुन लो और अपने शहर और अपनी आबादी को तबाही से बचाओ। रूमी सालार ने आगे आकर कहा, हम शिकस्त खाने के लिए बाहर नहीं आए। वापस चले जाओ और जिंदा रहो। वो कोई और थे जिन्होंने तुमसे शिकस्तें खाई हैं। शराबील रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐलान किया, खुदा की कसम हम लड़ाई से मुंह नहीं मोड़ेंगे, लेकिन तुम्हें एक मौका देंगे कि सोच लो। आगे आओ और हमारी शर्तें सुन लो। मुकालमों और ललकार का तबादला हुआ और रूमी सालारों ने शराइत पर बातचीत करने का फैसला कर लिया। उनका सिपाह सालार आगे आ गया। उधर से शराबील रज़ी अल्लाह अन्हु आगे गए। रूमी सालार ने कहा, बोल ऐ मुसलमान सालार, अपनी शर्त बता। शराबील रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, इस्लाम कबूल कर लो। ये मंजूर नहीं तो जिजिया अदा करो। ये भी मंजूर नहीं तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। रूमी सालार ने कहा, हम अपना मजहब नहीं छोड़ेंगे और हम जिजिया नहीं देंगे। लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। उसके साथ ही रूमी सालार ने मुसलमानों पर हमले का हुक्म दे दिया। रूमियों की तादाद 3 गुना थी। शराबील रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने 4,000 मुजाहिदीन को जंगी तरतीब में सफ आरा कर रखा था। उन्हें अपनी नफरी की किल्लत का एहसास भी था। उन्होंने अपने दोनों पहलुओं को फैला दिया था ताकि दुश्मन घेरे में न ले सके। रूमी जंगजू थे और उनके सालार तजर्बाकार थे। वो मुसलमानों को घेरे में लेने की ही कोशिश कर रहे थे। लड़ाई घमसान की थी। शराबील रज़ी अल्लाह अन्हु कासिदों को दाएं बाएं दौड़ा रहे थे और मुजाहिदीन को ललकार भी रहे थे। मुजाहिदीन अपनी रिवायात के मुताबिक बेजिगरी से लड़ रहे थे, लेकिन रूमी 12,000 थे। उनके सालार उन्हें दाएं बाएं फैलाते जा रहे थे। शराबील रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दाएं और बाएं देखा तो उन्हें अपने दस्तों की सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक दिखाई थी। ऐसी सूरत हाल पसपाई का मुतालबा किया करती है, लेकिन शराबील रज़ी अल्लाह अन्हु की ललकार पर मुजाहिदीन का जोश और जज्बा बढ़ गया। वो पसपाई के नाम से नावाकिफ थे। उन पर जुनूनी कैफियत तारी हो गई और 4-5 घंटे गुजर गए। फिर वो सूरत पैदा हो गई जिससे शराबील रज़ी अल्लाह अन्हु बचने की कोशिश कर रहे थे। दुश्मन के पहलू फैलकर मुसलमानों के पहलुओं से आगे निकल गए थे। वो घेरे में आ चुके थे। शराबील रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दोनों पहलुओं के कमांडारों को पैगाम भेजे, अंदर की तरफ नहीं सुकड़ना, बाहर की तरफ होने की कोशिश करो। शराबील रज़ी अल्लाह अन्हु की चालें बेकार होने लगी। बेशक मुसलमानों का जज्बा रूमियों की निस्बत ज्यादा था, लेकिन रूमी तादाद में इतने ज्यादा थे कि मुसलमानों पर गालिब आ सकते थे। शराबील रज़ी अल्लाह अन्हु ने ललकार कर कहा, अल्लाह के परिस्तारो, फतह या मौत, अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह की राह में जाने दे दो, अल्लाह की मदद आएगी। मुसलमानों के लिए ये जिंदगी और मौत का मार्का बन गया था।
शराबील रज़ी अल्लाह अन्हु की पुकार और ललकार पर मुजाहिदीन ने बुलंद आवाज से कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर दिया, जिससे उन्हें तकवीयत मिली। लेकिन रूमी उन पर हावी हो गए थे। मुसलमानों के जोश और जज्बे में कहर पैदा हो गया था। रूमी फौज मुसलमानों के अकब में चली गई। अब मुसलमानों का कुचला जाना यकीनी था। रूमी जो मुसलमानों के अकब में चले गए थे, उन्हें अपने अकब में घोड़े सरपट दौड़ने का तूफानी शोर सुनाई दिया। उन्होंने पीछे देखा तो सैकड़ों घोड़े उनकी तरफ दौड़े आ रहे थे। उनके आगे दो सवार थे जिनके हाथों में तलवारें थी। उनमें से एक के सर पर जो इमामा था उसका रंग सुर्ख था। वो खालिद थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने लश्कर के साथ बसरा की तरफ आ रहे थे। उनके रास्ते में दमिश्क आया था, लेकिन वो दमिश्क से हटकर गुजर आए थे। पहले वो बसरा को फतह करना चाहते थे। ये अल्लाह के इशारे पर हुआ था। अल्लाह ने कातिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार और दुआ सुन ली थी। इस्लामिक शोर स्टेटस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें।